You are talking about is on an average salary 11,000, but minimum salary वहाँ पर थी 8,000 per month. So after 6 years of education, you're still considered a bachelor degree holder. फार्मेसी में एक बहुत ही फेमस फ्रेज किया है, Correct. आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है पूरे पूरे इंडिया में, आप बद्दी चले जाओ, वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी. Lot of advertisements of pharmacy colleges. सब में लिखा है 100% placement, सब में लिखा है 18 lakhs LPA. कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड 6 ईयर का डिग्री नहीं मांग रहा है, तो क्यों बनाया इंडिया के लिए? Focus on clinical pharmacy is also important because that is what is taught all over the world as well. एमआर का जॉब कर रहा है, सेल्स का जॉब कर रहा है, तो फार्मेसी आपने क्या सेल्स की जॉब के लिए किया था क्या? Do you think there is an exit exam that is required? इट इज़ वेरी नियर टू माई होम एंड मैं वहाँ पे गया, कॉलेज में लॉक लगा हुआ था, तो मैं मालूम किया कॉलेज में क्या हो रहा है, तो मालूम हुआ भाई ये नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, एंड वो भी उत्तराखंड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका फीस 10-10 लाख रुपये बी फार्मा का वो चार्ज कर रहे हैं, राइट? Hello and welcome back to Academically. Aaj we are going to talk about something extremely important but extremely disturbing as well. The scam that is happening in pharmacy education in India. I'm privileged to be joined by Dr. Akram, a pharmacist, a research scientist, a PhD from the University of Sydney, an international healthcare career coach and the founder and CEO of Academically Global. Hello sir. हेलो, थैंक यू. Today there are so many options in pharmacy education in India. After 12th grade you can do your B Pharm, you can do Pharm D, but the problem is not though the parents nor students know what they should do next. And the colleges over here are advertising sometimes unethically about the job opportunities after pharmacy. The biggest scam is that there are so many job opportunities they are promising, but what is really happening in the industry? That's something that we need to really talk about here. So Dr. Akram, can you tell me, after 12th standard, what should children do if they want to do pharmacy? What is the scope? What are the degrees that they should take? Is there a need for a unified degree, or is there a need for 2 degrees like we have right now, like the B Pharm and the Pharm D? So as you know, if you want to become a registered pharmacist in India, there is a 3 degree and not one, basically, right? Not 2. So first क्या है कि आप बन सकते हो, you can do diploma in pharmacy. Okay. 2 year का कोर्स है एंड 3 मंथ की ट्रेनिंग करनी होती है इन हॉस्पिटल. You can become a registered pharmacist. And majority of the colleges nowadays they are offering diploma in pharmacy. Okay. And second is degree is called Bachelor of Pharmacy. So Bachelor of Pharmacy they can do 4 year का degree है, and then they can become registered pharmacy, can work in the retail sector, hospital sector, even in the industry as well. Then another new course they introduced called Doctor of Pharmacy. It is 6 year course, you know. Then they also can work in the similar things. But the problem is here, मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो गवर्नमेंट जॉब आती है इंडिया में उसमें एलिजिबिलिटी होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी. ठीक है, डिप्लोमा लॉन्च किया गया था, बहुत ही बढ़िया आउटडेटेड कोर्स है पूरा, यू नो. इसको बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर डिप्लोमा के बाद फार्मेसिस्ट बनाते हैं. कुछ कंट्रीज़ में दे कैन वर्क एज असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन, बट नॉट एज इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट लाइक इन इंडिया वी आर डूइंग, राइट. एंड वर्ल्ड वाइड द सिनेरियो क्या चल रहा है अभी, इफ़ यू वांट टू वर्क इन अब्रॉड एंड दे नीड मिनिमम 5 year डिग्री. बहुत सारी कंट्रीज 5 साल की डिग्री मांगती हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो दे आर नॉट एलिजिबल एवन आफ्टर बी फॉर्म. फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर बी फॉर्म किया इंडिया में, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन यूएस, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन आयरलैंड, इवन दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन सऊदी अरबिया. और इन फ्यूचर में बहुत सारी कंट्री 4 साल की डिग्री को ख़त्म करने वाली हैं, वो भी 5 साल की जो डिग्री है उसको मानेंगे, यू नो. तो जो बेस्ट कोर्स बचता है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. 6 year का कोर्स है. यू कैन डू दैट कोर्स, इज ए यूनिवर्सल कोर्स है, गुड कोर्स है. यू कैन बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन इंडिया, यू कैन वर्क इन अब्रॉड आल्सो. दिस इज लाइक ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल डिग्री है फार्म डी जो इंडिया का है. बाकी डी फॉर्म में बी फॉर्म इस आउटडेटेड डिग्री है, इसको अपग्रेड कर देंगे. मेरे हिसाब से 1 डिग्री होना चाहिए, दैट इज़ 5 year का डिग्री होना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड रहे. बदर दे वांट टू वर्क इन इंडिया इन अब्रॉड दे कैन. एंड द प्रॉब्लम क्या है इंडिया में फार्मासिस्ट का, जो गवर्नमेंट जो जॉब्स आती हैं डिप्लोमा फार्मेसी की, वहाँ पर सैलरी बहुत ही कम होती है. तो उसमें क्या देखते हैं फार्मासिस्ट में, सी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितने साल का है, राइट. Correct. आप अगर देखोगे, अगर आपके नर्सिंग का जो कोर्स है वो है 3 year का, राइट, एंड डिप्लोमा है 2 year का, तो उसके हिसाब से सैलरी कम बनती है फार्मासिस्ट की, इवन इफ यू डिड योर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री एज वेल, बिकॉज दे विल सी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उस ऑक्यूपेशन में, उस प्रोफेशन के अंदर. So in all the government vacancies that they say, the minimum requirement is a 2 year degree.
But for somebody who's done a 6-year pharmacy degree, as in the PharmD, they are the 4 years of extra study that they have done, the clinical research and everything else that they have done, is kind of going to waste, sir, here. यस 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 इवन बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह पर एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन होता है दे नीड डिप्लोमा इन फार्मेसी इवन दे आर नॉट आस्किंग दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई आपने फार्मडी किया है या एम बी फॉर्म किया हुआ है तो क्या होता है कि बहुत सारी जो ओल्ड एडवर्टीजमेंट है वो सेम फॉलो कर रहे हैं अपडेटेड नहीं हो पा रहा है फार्मेसी का तो वेस्ट हो जा रहा है बट ये जो जिसने फार्मडी किया ओवरली इनकी बहुत ही हाई डिमांड है गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन अब्रॉड में एज कम्पेयर टू इंडिया Sir, recently we had done a podcast that really did very well, and we had a lot of comments over there. We had asked for a 5-year combined degree, Yeah. but the comments said that when we already have a 6-year degree, why are you asking for a 5-year degree? मैं इसलिए So, बोलता हूँ कि yes. बेसिकली दे नीड टू कम्प्लीटली तीनों डिग्री बंद कर देना चाहिए एंड दे नीड ओनली 1 डिग्री 5 ईयर का डिग्री हो सो वो एक्सेप्टेबल रहो वर्ल्ड वाइड फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड 6 ईयर का डिग्री नहीं मांगा है तो क्यों बनाया इंडिया के लिए एक साल एडिशनल क्यों लगा रहे हो इंडियंस का राइट एंड कोई भी ऐसा कंट्री इवन यूएस भी 5 साल का डिग्री मांगता है नॉट 6 ईयर का डिग्री तो 6 ईयर का डिग्री बनाने के बाद में इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में जो फार्मडी है इंडिया का इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए अंडरग्रेड मीन जो फार्मडी है इंडिया का 6 ईयर का कनाडा में जो रिकग्निशन है और ऑस्ट्रेलिया में वो है बी फॉर्म के बराबर ही है नथिंग स्पेशल इन दैट के यू डिड फार्मडी So you mean to say, sir, after 6 years of education, you're still considered a bachelor degree holder in abroad. But if you do a 6-year degree, you're considered a bachelor degree holder abroad. But if you do your masters in pharmacy, then how are you considered? This is something like we are talking about a licensing exam. तो licensing में they see continuous degree. So continuous 5-year degree चाहिए. For example, किसी ने B Pharm किया 4 year का plus 2 year का M Pharm किया. Still this 6 year is not equivalent to your 5-year degree because ये 2 different course हैं 2 different university से आपने किए होंगे और जब आपने B Pharm किया एंड M Pharm किया मे बी आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री का क्या यूज़ है when you are working in a hospital setting when you are talking to a patient when you are giving the counseling so this is like a research degree but yes if you want to do personal further education you want to do PhD और research में अगर आपको जाना है तो M Pharm consider master degree तो integrated ये course है तो इसको undergrad मानते हैं और M Pharm को मानते हैं master degree Okay. My other very important question is, as parents, we always want the best for our children. We want them to have all the opportunities to do whatever they want in the future after finishing their bachelor's. But unfortunately, I have seen that nor are the students informed, nor are the parents informed about the scope of each of the degrees. So can you tell us, B Pharm करने के बाद scope क्या है and PharmD करने के बाद scope क्या है? I am not talking about just in India but internationally. Yeah. So as you know, we are आपने डिप्लोमा या बी फॉर्म के बाद जनरली इंडिया में यू कैन वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर हियर एंड देयर बट जनरली इंडिया में जो लोग वर्क करते हैं दे वर्क इन ए प्राइवेट सेक्टर जो रिटेल फार्मेसी में हॉस्पिटल फार्मेसी में या किसी इंडस्ट्री में जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं राइट बट प्रॉब्लम क्या है जो इंडस्ट्री जो होती है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ पर दे आल्सो हायर ए लाइफ साइंस ग्रेजुएट मीन अगर आपने बीएससी किया है जूलॉजी बॉटनी से इवन यू कैन वर्क देयर माइक्रोबायोलॉजी में किया है आपने बायोकेमिस्ट्री में किया कोई सब्जेक्ट में आपने किया बीएससी एमएससी यू कैन वर्क इन द इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री एंड दे आर सेइंग जो आप फार्मेसी में पढ़ के आ रहे हो उसका अर्नमेंट नहीं है दैट्स व्हाई कि सैलरी बहुत ही लो होती है मैं आपको बताऊँ एक जगह है बद्दी फार्मेसी में एक बहुत ही फेमस फ्रेज किया है Correct. आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है पूरे इंडिया में आप बद्दी चले जाओ वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी ठीक है इंडस्ट्री के अंदर बट कितनी जॉब क्या सैलरी होता है आपको पता है यू विल शॉक टू सी दैट वहाँ पर अभी भी सैलरी मिलती है 14,000 16,000 पर मंथ इतने में तो एक रूम ही मिलेगा आपको रेंट पे इवन यू कैन अच्छी साहब खा भी रह भी नहीं पाओगे अकेले वहाँ पर बट अब्रॉड आई थिंक इसका इंडिया में तो ये इसको बी फॉर्म का एंड जनरली फार्मडी वाले वर्क करते हैं इन CROs like they are working in the pharmacovigilance clinical trials
या मेडिकल राइटिंग और मेडिकल अफेयर, ये सारी जॉब्स ये कर रहे हैं. बट दिस इज आल्सो नॉट ए जॉब ऑफ फार्मासिस्ट. दिस जॉब कैन आल्सो डन बाय एनी अदर पर्सन, यू नो. तो फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है टू वर्क इन हॉस्पिटल और क्लिनिकल सेटिंग एंड गिव द एडवाइस टू ए पेशेंट टू टेक ए राइट मेडिकेशन एट द राइट टाइम, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यू नो. उसको काउंसिल करना, और कुछ अगर प्रिस्क्रिप्शन में कुछ एरर हो गया उसको आइडेंटिफाई करना, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, उसको करेक्ट कराना, यू नो. तो ये सारे काम से चेक उनका एडवर्ट रिएक्शन तो कुछ नहीं है, यू नो, ड्रग इंटरेक्शन तो कुछ नहीं, ये सारी चीज़ चेक करने का काम होता है फार्मासिस्ट का. तो जनरली वो हमारे यहाँ पर हो नहीं पा रहा है. सो लॉट ऑफ वैकेंसीज और जॉब्स अवेलेबल होती हैं फ़ॉरेन में. तो दे नीड टू पास दिस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फार्म डी किया हुआ है, so you can work anywhere in the world. You can work in US, Ireland, Canada, Australia. But अगर आपने बी फॉर्म किया हुआ है तो certain countries में you can not work. For example US, Ireland और सऊदी अरबिया. Rest of the world they accept. Even you cannot work in Europe also अगर आपने बी फॉर्म किया हुआ है, उसके लिए भी फार्म डी चाहिए होगा. Okay. So when I was researching for this podcast, मैंने ये देखा था lot of advertisements of pharmacy colleges. सब में लिखा है 100% प्लेसमेंट, सब में लिखा है 18 lakhs LPA. And when I looked at Indeed, a job site, the starting salary I saw for a pharmacist, and we can put this on the screen as well for the viewers, it was 11,000 and something. So This is on an, you are talking about is on an average salary 11,000, but minimum salary वहाँ पर थी 8,000 a month. Okay. Okay. That's even more shocking, you know, that is the scam I'm talking about here. तो बेसिकली यू नो जितनी भी जो जॉब्स हैं फार्मेसी की बहुत ही लो सैलरी होती हैं. इवन आई डिड रिसर्च ऑन लिंक्डइन, वहाँ पर जॉब्स तो बहुत है फार्मासिस्ट की, पर वहाँ पर किसी ने भी सैलरी मेंशन नहीं किया, बिकॉज इतनी कम सैलरी है वो मेंशन ही नहीं करते हैं अंटिल कैंडिडेट वहाँ पर जाकर उनसे बात करे और इंटरव्यू दे वहाँ पर. तो बताएंगे आपको 12,000 देंगे या 11,000 देंगे या 15,000 देंगे. नो, दिस इज़ वेरी वेरी लो सैलरीज है. इवन अगर जो मजदूर जो है ना एक दिन में उससे ज़्यादा पैसा अर्न करता है फार्मेसी से, तो फिर वेस्ट ऑफ मनी. इतने साल आपने पढ़ाई किया उसका क्या यूज़ रहा, राइट. उसका रीज़न एक क्या भी है ना, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, they are running a fake colleges kind of, like, you know, but they are doing, they are, you know, not hiring proper faculty there, you know, they are renting the faculty license basically, you know. And even the shocking is ये है, बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं कॉलेज और वो जस्ट एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं. एग्ज़ाम के टाइम नॉन अटेंडिंग फार्मेसी आजकल इंडिया में बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया. जो लोग बी फॉर्म कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ऐसे ये बहुत सारी. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डे बाई डे डिग्रेडेशन हो रहा है फार्मेसी एजुकेशन के इंडिया के अंदर. एंड जो अथॉरिटीज़ हैं शुड लुक, यू नो, कि जिस कॉलेज को आप अप्रूवल दे रहे हो आप मॉनिटरिंग प्रॉपरली कि वहाँ पर फैकल्टी है नहीं है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, यू नो. एंड जो PCI के जो सिलेबस है वो भी एक ओल्ड हो चुका है. विल नीड आल्सो नीड टू चेंज, स्पेशली द इंडस्ट्री अलाइंड सिलेबस होना चाहिए. जो इंडस्ट्री को चाहिए वही हम प्रोड्यूस कर पाएँ तो शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ पाए. So I agree that industry aligned syllabus is extremely important for BPharm, and the PCI, I know we had written about it. They are trying to revamp the syllabus. Yeah. But I heard that you said that focus on clinical pharmacy is also important because that is what is taught all over the world as well. So if we want our pharmacists to get on the global stage, there should be equal alignment or possibly a specialization in either clinical pharmacy or industrial, depending on what the student wants to pursue later on. तो क्लिनिकल फार्मेसी के लिए फार्म डी लाया गया था इंडिया में, राइट. तो फार्म डी जिसने किया है दे आर ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. बट गवर्नमेंट में कहीं पर भी उनको कोई भी वैकेंसीज, कोई जॉब्स नहीं आती हैं, उनको कोई भी जॉब्स नहीं है. दे आर डूइंग जॉब्स हेयर एंड देयर. दे आर नॉट डूइंग फार्मेसी जॉब, दे आर डूइंग ऑड जॉब्स. स्पेशली आई कैन से, यू नो, दीज आर रिलेवेंट जॉब. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च, वहाँ पर इज़ नॉट फॉर फार्मेसी. वहाँ पर आपको डेंटिस्ट्री वाले मिल जाएंगे, नर्सिंग वाले भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पर, और अदर एलाइड हेल्थ केयर वाले भी मिल जाएंगे. इवन लाइफ साइंस वाले लोग जिसने बायोटेक्नोलॉजी किया है, माइक्रोबायोलॉजी किया है, बायोकेमिस्ट्री का, ये सारे लोग वहाँ पर जॉब करते. दिस इज़ जॉब नॉट फॉर स्पेशलाइज, यू नो. तो इन लोग को बेसिकली वी नीड टू गिव देम कि भैया जो इन शायद जो पेशेंट होते हैं जो एडमिट होते हैं उनके पास अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर मस्ट बी ए clinical pharmacist, so they can Correct. check their medication, they can give the proper counseling to the patient, you know, so we can utilize them better way, you know. बहुत सारी जगह पर मास्टर ऑफ फार्मेसी है फार्मेसी प्रैक्टिस में या क्लिनिकल फार्मेसी में, उसको थोड़ा सा अपडेट करके वी कैन, यू नो, वी कैन इंक्लूड द ऑस्की. हमारे जो प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो सिलेबस है बहुत ही ओल्ड चला आ रहा है जिसमें ऑस्की इंक्लूड नहीं किया गया. पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में क्या है ना,
उसकी मैंडेटरी है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन अब्रॉड, वेदर यू आर ए मेडिकल डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, इन सब के 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है पार्ट 1 होता है, या जो है वो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, इट इज़ ए बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम। ये बेसिकली आपका थ्योरी जो है वो चेक करता है। सेकंड एग्ज़ाम होता है ऑस्की एग्ज़ाम, क्लिनिकल एग्ज़ाम, और यहाँ पर वो जो है आपकी क्लिनिकल नॉलेज को चेक करता है, यू नो। तो ऑस्की इम्प्लीमेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर सारे कॉलेजेस में, इन फार्मेसी एजुकेशन में, स्पेशली इन फार्मडी में और बी फार्म में। जैसे वी आर सेइंग कि वी नीड 5 year डिग्री सो दे कैन वर्क इन क्लिनिकल फार्मेसी सेटिंग्स। Sir, can you elaborate a little bit? हमारा present B.Pharm syllabus में patient interaction, understanding how to communicate with the patient, how much emphasis it is given in India versus in developed healthcare ecosystems abroad? एक्चुअली जो इंडिया का जो सिलेबस है बी फार्म का, इट इज़ टोटली दे मेक फॉर द इंडस्ट्री ओरिएंटेड, नॉट फॉर द पेशेंट ओरिएंटेड। तो जो भी सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो जाता है कि आपको जॉब कैसे करनी है, नो, कि टैबलेट कैसे बनती है, कैप्सूल कैसे बनता है, सतंज कैसे बनता है, मेडिसिन कैसे बनता है, नो, या केमिस्ट्री वगैरह, या हम फार्माकोग्नोसी इतना पढ़ा रहे हैं। फार्माकोग्नोसी एक लाइक हर्बल ड्रग्स इतना हम पढ़ाते हैं, बस उसका यूज़ ही नहीं है इंडिया में। मेरे टाइम पे मैंने आई रिमेंबर मेरे 5 या 6 सेमेस्टर में मैंने फार्माकोग्नोसी पढ़ा। When I went to Malaysia, वहाँ पर एक चैप्टर था। सिमिलरली इन ऑस्ट्रेलिया एक चैप्टर पढ़ाते हैं वो, भाई उसका ज़रूरत नहीं है आपको, यू आर ए फार्मासिस्ट। तो फार्मेसी से ज़्यादा आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ड्रग इंटरेक्शन, पेशेंट काउंसलिंग और ये सारी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ दी। तो अभी जो करंट सिलेबस है टोटली इंडस्ट्री फोकस्ड है, तो वो दैट इज नॉट ए पेशेंट ओरिएंटेड कोर्स, पेशेंट फोकस कोर्स नहीं है। Okay. Sir, can I get back to the previous question? Yeah. I wanted to understand a little more about the ROI if you have become a pharmacist in India. Yeah. So, as a B.Pharm graduate from an average, college with an average fees, the fees and the amount I'm getting as a starting salary बिल्कुल match नहीं हो रहा है. How many years I would have to work with to at least get an ROI out of it. So, where is the gap? What do we have to address? How are we going to make a difference? Because there's so much unemployment also happening amongst pharmacists. There are very few government jobs. For 5 government jobs there are 50,000 people applying. So we need to get somewhere where there is if you can just explain how we can do this, sir. Basically if you see जो जितने भी टॉप कॉलेज हैं इंडिया के फार्मेसी स्कूल, I have been there, I've given lectures, we hired some students from those colleges. Yes. So वहाँ पर भी ROI तो निकल ही नहीं पाया, राइट। अगर आपने ROI इन द मीन्स जो बच्चे फार्मेसी में बच्चे कौन करते हैं, जनरली बच्चे जो लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनको नीट में MBBS नहीं मिल पाया, 2-3 साल उन्होंने ट्राई किया। Correct. फिर वो लोग फार्मेसी कर लेते हैं, उनको लगता है फार्मेसी इज़ ए गुड कोर्स है, तो उन्होंने 2-3 साल प्रिपरेशन किया, 4 साल का डिग्री किया, टोटल 7-8 साल तो इसी में लग जाते हैं, राइट। Correct. और उसके बाद भी उनकी जॉब लग रही है 15,000 20,000 की, तो दिस इज टोटली लो है। एज इक्विवेलेंट टू मैं कहूँगा एक मजदूर की बराबर ही सैलरी उनको मिल रही Like है, a plumber or a electrician also. उनसे Maybe they उससे will कम ही get मिल more. रही है ना। इफ़ यू Yes, कॉल टुडे correct. कोई इलेक्ट्रिशियन वो मिलेगा भी नहीं, बोलेगा मैं कल आऊँगा और इतने रुपये चार्ज करूँगा। फार्मासिस्ट का जो कंडीशन है वो उससे भी बर्स्ट चल रहा है। Unfortunately, yes. यस, तो जनरली जो है अभी जो मार्केट में जो गैप है वो वही है कि भाई इसको इंडस्ट्री अलाइंड सिलेबस है नहीं, एंड इंडस्ट्री में क्या ना दे नीड बेसिकली वर्कर्स, Correct. एंड बड़ी कंपनी हायर करती हैं, वहाँ पर भी अच्छे लोग मिल नहीं पाते हैं ना। तो जो आपने पैसा लगाया है वो तो आप रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे, इंडिया के अंदर आपको रहना है। यस, ये इट माइट विल टेक 10 years और समथिंग। बहुत सारे अच्छे बच्चे एक्सेप्शनली हैं B.Pharm, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग इन मार्केटिंग और सेल, बट दिस इज़ नॉट ए फार्मेसी रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं वो, Core pharmacy नहीं है. यस, Yes. कुछ और ही जॉब कर रहे हैं बट दे आर अर्निंग वेल, तो वो तो आप अपने अगर BA B.Com BSc कोई ऐसा ऑर्डिनरी कोर्स भी किया है तो अभी आप कर सकते थे। इट इज़ नॉट फार्मेसी डिग्री, इसको नीड भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप MR बन जाते हैं तो MR का जो जॉब है इट इज़ नॉट फॉर फार्मासिस्ट। बहुत सारे कॉलेज वाले आई हैव सीन सम ऑफ माय फ्रेंड दे आर पोस्टिंग कि हमने इस कंपनी में जो है रिक्रूटमेंट कराया, हमारे स्टूडेंट का इतना पैकेज मिला, 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का पैकेज, बट वो पैकेज क्या था, काम क्या कर रहा है, MR का जॉब कर रहा है, सेल्स का जॉब कर रहा है। तो फार्मेसी आपने क्या सेल्स की जॉब के लिए किया था क्या? यू आर ए फार्मेसी, यू शुड वर्क इन फार्मेसी ओनली, इन योर फील्ड। तो आपको उसी में आगे बढ़ना है। तो ROI करने के लिए बेसिकली क्या है कि आपको यू शुड बेसिकली थिंक अबाउट अब्रॉड। आपको जो है किसी भी कंट्री का एग्ज़ाम पास करके यू कैन गो अब्रॉड, राइट। एंड वंस यू कंप्लीट योर डिग्री इन इंडिया सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन एनी रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्म। आपको कितने ही पैसे मिले, 12,000 15,000, आई अंडरस्टैंड पैसे, सैलरी बहुत ही कम है,
you gain some experience, write the licensing exam, and go abroad. Then you can better utilize your degree. Sir, you have worked in India, you have worked in Malaysia, and you have worked in Australia. आपने तीनों countries में pharmacists को देखे हैं from a very close view. You have seen the struggles in India, the struggles in Malaysia, and the struggles in Australia as well. And you have also seen the amount of respect pharmacists get in India versus Malaysia versus Australia. Can you tell us a little more about that? यस तो इंडिया में फार्मासिस्ट का मतलब है एक दवाई वाला, लोग समझते हैं बोलता है यार कोई भी केमिस्ट की शॉप खोल लेता है वही एक फार्मासिस्ट होता है, राइट। एक छोटू बंदा है दुकान में बैठा हुआ है वही दुकान में। जनरली क्या है वो लोग रेंट पे ले लेते हैं लाइसेंस एंड दे आर रनिंग तो उससे क्या हो रहा है फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है बहुत ही डिग्रेड हो रही है इंडिया के अंदर। फार्मेसी को एक बहुत ही बुरा प्रोफेशन माना जाता है इंडिया के अंदर। आपने अगर फार्मेसी के बाद जॉब अपनी कंपनी खोला या आपने कोई फार्मेसी खोल लिया, लोगों को लगा यार इसको कुछ जॉब नहीं मिला, क्या इसने क्यों ओपन किया है, तो कोई भी 10th पास खोल लेता है, राइट। तो इस तरह का परसेप्शन है। बट इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड आपको रियली में लगेगा यार यही एक फार्मेसी का जॉब है, इसकी नहीं मैंने डिग्री किया था। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है टू गेट योर प्रिस्क्रिप्शन फिल। आपको वहाँ पर प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलता है। वहाँ पर फार्मेसी का ऑनर कोई भी हो सकता है, बट जो फार्मासिस्ट है उसकी विदाउट साइन के कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस नहीं हो सकती है, एंड द फार्मासिस्ट आंसरेबल रहेगा कुछ भी अगर मिस हैपनिंग हो गई इन दैट फार्मेसी। फॉर एग्जांपल आपने अगर 100 टैबलेट बाय किया एंटीबायोटिक का फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, यू नीड टू गिव देम कि आपने किस किस पेशेंट को कितना कितना दिया, ओके दे नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स देयर। ओके यहाँ पर क्या है किसी भी फार्मेसी में चले कुछ भी आप मांग लोगे आपको मिल जाएगा। इवन बहुत सारी फार्मेसी जो छोटे मोटे कुछ भी नार्कोटिक्स टाइप की ड्रग्स भी आप मंगाएंगे वो भी आपको मिल जाती है तो बिकॉज उसका रीज़न यही है फार्मेसी वहाँ पे होता नहीं है, तो दे आर डूइंग बिजनेस। इंडिया में बेसिकली फार्मेसी का एक बिजनेस है, बट ऑस्ट्रेलिया में या मलेशिया में इट इज़ ए सर्विस ओरिएंटेड वो है कि जो है हम कम्युनिटी को जो है सर्विस दे रहे हैं, उनको हम जो है कुछ हेल्प कर पा रहे हैं कम्युनिटी के लिए। तो फार्मासिस्ट का जो मेन जॉब है वहाँ पर वैसे भी 5 ईयर लगते हैं टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। ओके तो मलेशिया में क्या है 4 ईयर आपको स्टडी करनी है स्कूल में फार्मेसी के, देन 1 ईयर की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। नाउ इंटर्नशिप में दे गिव द चॉइस टू द फार्मासिस्ट। आपको अगर इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो आप इंडस्ट्री में जाकर इंटर्नशिप कर लो, देन यू कैन बिकम ए फार्मासिस्ट। और अगर आपको हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी में जॉब करनी है तो आप वहाँ जाके आप जो है इंटर्नशिप कर लीजिए 1 ईयर की, तो टोटल 5 ईयर लगेंगे आपको फार्मासिस्ट बनने में। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में वही है, 4 साल फार्मेसी की डिग्री की पढ़ाई करनी है, आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना है, तो 5 साल लगेंगे टोटल टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन। बट इंडिया में क्या है कोई भी लाइसेंस एग्ज़ाम नहीं होता है या कोई भी इंटर्नशिप भी नहीं होती है बी फार्म के बाद में। ऑस्ट्रेलिया में और मलेशिया में 1 साल इंटर्नशिप होती है, उसी इंटर्नशिप में बच्चे का जो स्किल्स निखर के आती हैं उसको करना क्या है लाइफ के अंदर, यहाँ पर इंडिया में है ही नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बच्चों को बहन यू आर इन योर 2nd ईयर 3rd ईयर प्लीज़ डू इंटर्नशिप्स। क्या वो पैसे आपको दे रहा नहीं, आप इंडस्ट्री में जाओ, किसी छोटे मोटे मेडिकल स्टोर पे जाकर बैठो, कुछ लर्न करोगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है फार्मेसी डिग्री कर लेते हैं, इवन दे डोंट नो कि पैरासिटामोल का यूज़ किया है। डॉक्टर के पास जाते हैं सर मेरे को बुखार आ गया दवाई बता दीजिए आप क्या देना है मेरे को, एज अ फार्मासिस्ट दे डू यस ओके बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया, कुछ उन्होंने जॉब ही नहीं किया है कहीं पर। Correct. Sir, there was another interesting thing we had discussed some time back about exit exams. Do you think there is an exit exam that is required in India, like जैसे डिप्लोमा में जो होता है? Yes, जो डिप्लोमा फार्मेसी में एग्ज़ाम लगाया गया है इस मस्ट भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो है बी फार्म और फार्म डी के अंदर भी यही हो रहा है। बहुत सारे जो डिग्रीज बांट रहे हैं वो लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है कि 4 साल का आपने डिग्री किया, देन यू नीड टू कंप्लीट इंटर्नशिप 1 ईयर की। जब आप 75% इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो अपना जो है ऑस्ट्रेलिया में, देन यू नीड टू राइट 2 एग्ज़ाम, वन इज़ ए इंटर्न रिटन एग्जाम, अनदर वन इज़ ए इंटर्न ओरल एग्जाम। ये दोनों पास करने के बाद में देन बढ़िया क्या जब इंटर्नशिप खत्म कर लो 1575 आवर्स की, देन ओनली यू कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। कितना टफ प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया का, राइट। इंडिया में क्या है कहीं से भी हमें अलग कॉलेज से बी फॉर्म कर लिया, रजिस्टर बन जा रहे हैं, फार्मेसिस्ट बन जा रहे हैं। इवन इफ यू सी नेपाल आवर नेबर कंट्री है, उसने ये एग्जिट एग्जाम लगाया हुआ है। अगर कोई नेपाली सिटीजन है, कोई बी फार्म करता है या फार्म डी करता है, वांट टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन नेपाल, तो उसको एग्जिट एग्जाम पास करना मैंडेटरी है, एंड देन यू कैन बिकम ए फार्मासिस्ट। तो इंडिया में भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी क्वालिटी फार्मासिस्ट बनेंगे, तभी जो है दे कैन पेशेंट को एक काउंसलिंग कर पाएंगे। तो थोड़ा सा जो परसेप्शन बनेगा फार्मासिस्ट के बारे में इंडिया में जो पब्लिक में, वो भी जो है इम्प्रूव करेगा। I definitely believe so as well, because it is very important. I think these exit exams are able to establish their knowledge. Yes.
ऐसे कॉलेजेस में डिग्रीज बांट रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रूथ दैट इज हैपनिंग नाउ. The quality of pharmacists in the entire country is coming down, and that is देखो आपको affecting पता है the क्या होता है profession. कॉलेजेस में, जनरली जब अप्रूवल के लिए जब पीसीआई इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, को पता है बॉडी है हमारे, जी. तो बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस से इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं, रख लिया, एंड फैकल्टी नहीं है तो फैकल्टी का लाइसेंस ले लिया, कोई एमफॉर्म वाला बंदा मिल गया, कोई पीएचडी वाला मिल गया, तो जस्ट शो टू देम एंड वंस दे गेट अप्रूव्ड वहाँ पर कोई फैकल्टी है ही नहीं, क्लास चल ही नहीं रही है. ऐसे बहुत सारे कॉलेज, मैं अभी मेरे होम टाउन में गया, एक कॉलेज खुला फार्मेसी का, इट इज़ वेरी नियर टू माई होम, एंड मैं वहाँ पे गया, कॉलेज में लॉक लगा हुआ था. तो मैं मालूम किया कॉलेज में क्या हो रहा है, तो मालूम हुआ भाई ये नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम देने आते हैं, और फार्मेसी का उसको पीसीआई का अप्रूवल मिला हुआ है इसको. मैं बोला यार ऐसे अगर डिग्रियाँ बांटेंगे तो फार्मेसी का भविष्य क्या होगा फ्यूचर में. Sir, I would expect in a field which has no direct patient involvement, which has no healthcare involvement, if there is some course that doesn't have to have that the students coming in non-attending, that would still make sense if it's a BA degree. Yes. For instance, but in pharmacy where the responsibility is very high, it's shocking to hear that there is actually something like this going on, and I am sure the government will take यस, whatever पीसीआई को necessary बहुत ही action has to take. स्ट्रिक्टली जो है इंस्पेक्शन करना चाहिए, वो भी करना चाहिए इंस्पेक्शन. मैं कहूँगा बता के ना करें उनको, एक Correct. सरप्राइज विजिट करनी That's very चाहिए important. इंस्पेक्टर्स को. पहली बात तो इतने कॉलेज का अप्रूवल क्यों दिया हुआ है, 4000 कॉलेज का नीड है क्या इंडिया में, इतना कॉलेज के अप्रूवल का मतलब. अगर आप देखेंगे कॉलेज में आजकल इतने कॉलेज खुल गए हैं, प्राइवेट कॉलेज, एंड दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिग्रीज लाइक BA BSc. इन फ्यूचर Correct. बहुत ही ख़राब होने वाला है फार्मेसी का इन जनरल. So there will be not only more degrees, there will be so much more unemployment as well. Yes, of And the course. quality of pharmacists is going to come down, and then the perception of the entire field. So I was reading a very important article. It was a research paper, and it was about, they have devised a metric where they examine how different colleges across the world are actually submitting their research papers, which is a very important part to get like a QS ranking. And it was shocking to see that out of 15, I think there were 10 to 11 colleges from India Yeah. who were red flagged because of the excessive retracted papers that they had. So can you just tell me a little more about your thoughts on यस, that? ऐसे बहुत सारे लोग बेसिकली फार्मेसी अगर आपने किया, डेफिनेटली जीपेट पास करिए, एमफॉर्म PhD कीजिए, यू कैन बिकम ए प्रोफेसर, यू कैन बिकम ए साइंटिस्ट, राइट. एंड जब आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, यू नीड टू डू रिसर्च, राइट. तो इंडिया में क्या हो रहा है अभी, एक तरह से बहुत सारी फेक रिसर्च चल रही है, डेटा मैनिपुलेशन करके या पब्लिश कर रहे हैं पैसे दे के टू गेट रैंकिंग, तो उस टाइप की बहुत सारी कॉलेज. एंड आई वाज शॉक कि 15 यूनिवर्सिटी में 11 यूनिवर्सिटी इंडिया की ही थी. मतलब पूरे वर्ल्ड का वो सर्वे था. इट इज़ नॉट फॉर दे आर पॉइंटिंग आउट द इंडिया, बट इंडिया में बहुत सारा रिसर्च फेक और डिवियस क्वालिटी चला. उसमें बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर आप देखेंगे फार्मेसी, वहाँ पर एजुकेशन चल रहा है. Okay. And the shocking thing was 3 colleges from Uttarakhand alone. एंड वो भी उत्तराखंड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका फीस 10-10 लाख रुपया बी फार्मा का वो चार्ज कर रहे हैं, राइट. तो ऐसे कॉलेजेस में क्या भविष्य बच्चों का, यू कैन इमेजिन. Sir, there's another important question I want to ask you. There are some students who are extremely passionate about becoming pharmacists. So can you give us a step by step? What are the things that they should look for? What are the type of universities they should apply to? And what are the prerequisites of this university? जिसमें आपको लगेगा okay, this is a good college, and इसमें जो pharmacists निकल के आएंगे, they will be of top quality. या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए, राइट. Correct. एंड गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नहीं हुआ आपका फार्मेसी में, देन यू शुड चूज़ बेसिकली जो है NIRF की जो गवर्नमेंट रैंकिंग है जो निकालती है, उसमें भी टॉप कॉलेजेस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जामिया अहमद हो गया, डिप्सर हो गया, IIT BHU, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से मैं नाम नहीं ले सकता, जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं. आप प्लीज़ वहाँ ट्राई करें एंड गुड कॉलेज में जाएँ. छोटे मोटे कॉलेज, गली के कॉलेज से बिल्कुल भी ना करें. योर डिग्री इज़ गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू BA और BSc अगर आपने यहाँ कहीं से भी B Pharm किया, तो अच्छी जगह से करें. एंड बहुत सारी जगह पर जो है कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ से आप करें. इवन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा करेंगे, लाइक मणिपाल हो गया, या आई कैन से JSS, इवन जामिया हमदर्द, तो बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आप करें. Thank you so much, Dr. Akram, and it was very insightful, and we hope to catch you all very soon on our next podcast. या थैंक यू सो मच.